कलाम में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने। The word of God says those who have ear may hear. ये भी लिखा है कि वो सुनते हुए ना सुनेंगे और समझते हुए ना समझेंगे। And the word of God does say as well that while hearing they will not hear and they will not understand. हमारे कान हैं, क्या हमारे कान सुनने वाले हैं? Do we have ears that hear? कलाम में इसीलिए लिखे जिसके कान हो, तो दो कान हम सबके हैं। So we all have a pair of ears, 2 ears, everyone's got सबके it? पास। Amen. पर खुदावन से कहें, खुदावन मुझे कलाम सुनने वाले कान दे। Now pray to God that give me the ears that can understand your word and hear your word. ऐ खुदावन मैं तेरे कलाम को सुनने वाला हूँ। God, I want to hear your word. कलाम कहता है सुनने वाले कान होने चाहिए, The word of God says have ears that hear. ताकि रूह जब कलीसिया से बात करे तो वो सुनी जाए। So when the Spirit of the God speaks, the body of Christ may hear the तो word. रूह बोले तो हम सुने। When the Spirit of the Lord speaks, we must be able to hear His Hallelujah. voice. Hallelujah. सो खुदावन हम मुंतज़िर हैं हमसे बात करना। Lord, we are ready. Speak to us. हमारे कान तेरी तरफ है। Our ears are directed towards you. हमारी तरबियत करना, Lord, reprove us, तंबी करना, rebuke us, ताकि हम तुझ जैसे हो जाए, तेरे बेटे जैसे हों। so that we become like your Son Jesus. Hallelujah. तेरा कलाम ही हमें तुझ जैसा बना सकता है। Lord, your word can make us like you. यीशु के नाम से मांगते हैं। In Jesus' name we pray. हालेलुया। Hallelujah. हम सब यीशु जैसा बनना चाहते हैं। Do you want to be like Jesus Christ? सब बनना चाहते हैं। Everyone? हम सब बनना चाहते हैं ना। We all want to be like Him. हालेलुया। Hallelujah. यीशु का तस्वुर एक बहुत खूबसूरत सा तस्वुर है। So when we imagine Jesus, what a beautiful imagination it is. और फिर जब हम ये सोचते हैं कि अगर हम यीशु के साथ होंगे, कितनी खूबसूरत बात है ये। And when we imagine this and think about it, that we will be with Jesus. यानी जहाँ खूबसूरत यीशु वहाँ हम भी होंगे। So we will be there where Jesus is. और वो जगह तो ऐसी है कि बस कोई दुख नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई शुगर नहीं, कोई ब्लड प्रेशर नहीं, And that place कोई कमर की दर्द नहीं। is a place, it's a heavenly place where peace resides. There is peace, no stress, no sorrow, no pain. और वो जगह है खुदा की बादशाही। And that is the kingdom of God. बहुत सारी बातें हैं खुदा की बादशाही को पाने के लिए। There are many things that say we can get to the kingdom of God. हाँ, हम कुछ भी कर ले, हम यहाँ दुनिया की बादशाही हासिल कर ही नहीं सकते। No matter what we do in this world, we cannot get a kingdom. कुछ भी हो जाए, हम किसी भी मुल्क के मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते। कोई है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर सोच रहा है कि बन सकूंगा कभी मैं? If you want to become a prime minister here, you can't. हम सोचते भी नहीं, So we don't even think क्योंकि about it. हमें पता है हम बन ही नहीं सकते। Because we know we cannot become one. एक कहीं किसी ख्याल एक छोटा सा कहीं से आता भी नहीं ज़हन में कि हम कभी ऐसे कोई मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर टाइप की चीज बनेंगे। Such thought does not even cross our mind that we will one day become a prime minister. लेकिन जब हम कहते हैं खुदा की बादशाही, तो हम सब कहते हैं कि हाँ, हम खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं। Amen. But when it comes to the kingdom of God, we all say we want to enter the kingdom of God. स्पेशली हम जो मसीही हैं, हमारे पास एक और बादशाही है जिस पे हम कब्जा कर सकते हैं। And as Christians, there is a kingdom we can get hold of. हाँ, जिसके अंदर हम दाखिल हो सकते हैं, A kingdom we can enter. जिस महल के अंदर हम जा सकते A हैं। palace we can enter. यहाँ के महल में जाके भी हमने मरना ही है। If we enter any palace in the world, we'll still go enter and we'll die. लेकिन जिस बादशाही में और जिस महल में हमने जाना है, वहाँ पे मौत नहीं है। The palace or the kingdom that we are talking about, the kingdom of God, there is no death वहाँ there. कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है। There is no sorrow, no pain, no stress. जब तक यहाँ पे हैं, हम दुख में हैं। Till we are in this world, we are in pain and sorrows. आज मैं आपको बादशाही में जाने का एक और तरीका बताऊंगी। So I'm going to tell you another way how to enter the kingdom. हालांकि मैं 2-3 हफ्तों से, बल्कि मैं ख्याल में जब से ये साल शुरू हुआ, मैं बादशाही में एंटर होने के तरीके बता रही हूँ। So since the year has started, she has been preaching on the kingdom of God. कभी मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो ताकि बादशाही में दाखिल हो सको। Sometimes I do preach on that you open the door and so you can enter the kingdom. क्योंकि अभी 2-3 हफ्ते पहले एक मैसेज था कि आप दरवाजा खोलेंगे, वो अंदर आएगा, तो उसके बाद आप बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। So
the 2 weeks, the message, the sermon was, if you open the door for Jesus, He will enter, and you then will enter the kingdom of God. लास्ट वीक में हमने जो मैसेज दिया था वो ये था कि निशान है, अगर हम उसकी तरफ दौड़ेंगे तो हम बादशाही में दाखिल होंगे. So last week's sermon was, the message was that we must run the race and keep the faith. हम जब तक उसको जीतेंगे नहीं, ऐसे दौड़ो के जीतो. So until unless we run and we win, it will not happen. जीतेंगे तो बादशाही में दाखिल होंगे. So if we win, then we will enter the kingdom. फिर हम ताज को पाएंगे, जिंदगी के ताज को, और ना मुरझाने वाले सेहरे को पा सकेंगे. And then we will have the crown of life. आज एक और चीज है जिसके पीछे हम सब भाग रहे हैं. There is another thing that we are running after. जिसके पीछे हमको भागना नहीं चाहिए, हमारी जरूरत के लिए बस वो हमारे पास होना चाहिए. So this thing we should not run after, but we should have enough. लेकिन हम ज्यादा से ज्यादा उसको पाना चाहते हैं. But we want to have it more abundantly. हम सोचते हैं शायद इसी के साथ चैन और आराम है. So we think that we will have peace with this. हालांकि उसके अंदर चैन भी नहीं है, आराम भी नहीं है. But the thing that people are running after, you will find no peace in it. जो पुराने यहूदी थे, The Jewish people, जो पुराने यहूदी थे, the old Jewish उनका people, ख्याल था कि जो दौलतमंद होता है वो दौलत उनको यूं करके एक मोहकम शहर की तरह है. so they had this idea that the wealth or money or prosperity is like a city. और इमसाल की किताब उसका 10वां बाब मेरे साथ देखिएगा. Proverbs chapter 10. Please open Proverbs chapter 10. 10वां बाब और उसकी 15 आयत. Proverbs chapter 10 verse 15. इमसाल की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 15 आयत की पहले हिस्से में लिखा है, दौलतमंद की दौलत उसका मोहकम शहर है. So what do they talk about wealth? It says the rich man's wealth is his strong city. हाँ, वो सोचता है कि ये मेरा मोहकम शहर है जिसमें मैं पनाह ले सकता हूँ. So a rich man, a person thinks that wealth is a strong city which he can enter and will have peace. और यहूदियों का भी यही ख्याल है. And this is what the Jews at that time believed as well. यहूदी सोचते थे ये बात कि अगर हमारे पास दौलत होगी तो हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ हमारे हाथ में है. So the Jews believed at that time that if they have the money, the wealth, they have everything. हाँ, और आज भी बहुत सारे लोगों का ख्याल है जिसके पास पैसा उसे किसी चीज की कमी नहीं. So a lot of people who have money, they think the same thing, that if they have money, their wealth, they have everything. मैं पैसे के खिलाफ नहीं हूँ. We're not against money or wealth. बाइबल भी पैसे के खिलाफ नहीं है. The Bible does not talk against wealth. लेकिन खुदा कहता है इतना ही हो जितना आपकी जरूरत के लिए है. But God says have enough that is needed. इंसान की प्रॉब्लम क्या है? What is today's day and age problem? साइकिल होती है तो मोटरसाइकिल मांगता है. When you have bicycle, you ask for motorcycle. एक वक्त होता है पैदल चलता है. So what problem is today's man that one time you just walking? जब पैदल चलता है तो साइकिल कोई हसरत से देखता है. So when you are walking, you look at bicycle and you want to have that. बाइसिकल ही होती तो यार ओदी तरह उतो तक पहुंची होंदा. Yeah, and when they look at the bicycle, they say, "Oh, if I had a bicycle, I would have completed more journey." हाँ, तो जब बाइसिकल आ जाती तो कहता है मोटरसाइकिल आ जाए. And when man gets bicycle, they look for motorcycle. और जब मोटरसाइकिल आती कहता है 4 व्हील वाली हो तो बहुत अच्छा है यार. And if they have once they get motorcycle, they look for a car. और जब कार आ जाती तो फिर वो कहते हैं कि ओडी हो तो बहुत अच्छा है, छोटी मोटी चाहिए नहीं मुझे. So once you have a car, you look for then a man looks for branded, high cars. उसको छोटी मोटी कार नहीं चाहिए. A man is not happy with a small car. मतलब आपका इंसान का ये इंसान की फितरत में है. This is the nature of man. इंसान किसी हाल में खुश नहीं है. Man as humans, they are not happy in any situation. और खुदा कहता है जो तेरे पास है उसके शुक्रगुजारी कर. And what the God of the Bible says, He says, be content, be happy with what you have. मतलब और Not meaning that more. वो कभी नहीं भरता. And if you keep on asking and desiring more, you will never be fulfilled, satisfied. और ये मैं बता दूं कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा. And the Bible says that a rich person will not enter the kingdom of तो God. कभी भी दौलतमंद बनने की ख्वाहिश मत कीजिएगा. So don't desire to be rich.
और जमा करने की ख्वाहिश मत कीजिएगा। Don't desire that you gather this and that. बस जरूरतों को पूरी करने के लिए किया करें। So whatever you want to do it so that your needs are fulfilled. रोज की रोटी मिलती है, You have your daily bread. काफी है। It's enough for you. आमीन। Amen. मेरे साथ देखिए लूका की किताब उसका 18 बाब। Please open the Gospel of Luke chapter 18. क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ, दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल ही नहीं हो सकता। जितने दौलतमंद है ना, जो आपके पास से गाड़ी उड़ा के गुजर जाते हैं और सोच ले ये बादशाही में नहीं जाएगा, आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। So you have to do the thing to enter. You have to do things to enter the kingdom of God. आमीन। Amen. तूने निकाल लिया रिबका? निकाल लिया? आके पढ़। हाँ, लूक 18 आजा। देखा, निकाला ही नहीं था बच्चा। मैं भी माँ वहां तर दिया, अखा ना पढ़ दी तनु। शाबाश, उठिया। लूक 18 आजा, मैं हेल्प करूंगी निकालने में। अलाउड पढ़ना। हाँ, 18 से 18 की 18। चल, 18 से शुरू कर पढ़ना, जोर से पढ़। A certain ruler asked him, "Good teacher, what must I do to inherit eternal life? Why do you call me good?" Jesus answered, "No one is good except God alone. You know the commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not give false testimony, honor your father and mother. All these I have kept since I was a boy." He said. When Jesus heard this, he said to him, You still lack one thing. Sell everything you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come follow me. When he heard this, he became very sad because he was a man of great wealth. Jesus looked at him and said, "How hard is it for the rich to enter the kingdom of God? Indeed, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." For those who heard this asked, "Who then can be saved?" Jesus replied, "What is impossible with men is possible with God." Peter said to him, "We have left all we had to follow you." I tell you the truth," Jesus said to them. "No one who has left home or wife or brothers or parents or children for the sake of the kingdom of God will fail to receive many times as much in this age and in the age came to eternal life. Amen. 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 Hallelujah. Thank you बेटा। ध्यान से सुनना, मैं सवाल भी पूछूंगी। अच्छा, बातें ध्यान से सुनना, मैं बीच बीच में कुछ पूछ भी सकती हूँ, ठीक है? इसका मतलब है कि हमें जागते रहना है। आमीन। होशियारी से बैठने की जरूरत है। Amen. सब जाग रहे हैं? Is everyone awake? सब जाग रहे हैं? Everyone's awake? और कहिए खुदावंद से कि मुझसे बात कर। अच्छा, बात करे खुदावंद, आप में से हर एक के साथ बात करे। आमीन। Amen. Say to the Lord that you speak to me. क्योंकि कितनी बड़ी बात है कि खुदा बात करे आपसे। What a great thing it is that Lord speaking to you. मत सोचिएगा मैंने किसी को कोई बात बताई है, ये खुदा ही आपको बताएगा। खुदा ही आपकी तरबियत करना चाहता है, मेरी भी।
This is what God wants. God wants to speak to all of you. हाँ, ऐसा मत कहिएगा कि पास्टर रोज ने मुझे कुछ लगा दिया। Don't say that Pastor Rose has told me अगर anything. किसी के पास बहुत सारे पैसे हैं तो मत कहिएगा कि पास्टर रोज ने मुझ पे लगा दिया कुछ। Yeah, if you have a lot of money, don't think that she is preaching to you. हाँ, दौलत है तो उसके इस्तेमाल का तरीका भी बताऊंगी आपको। If you have money, we'll tell you how to use it. Amen? Amen. Amen? Amen. यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई सरदार था So we see that there was a certain man, और वो खुदावन यीशु मसीह के पास आया and he came to Lord Jesus और Christ, उससे आके बात कर रहा है। and then he's talking to him. ऐसे ही हमने पढ़ा है। Is this और not वो आके what उसे we कह रहा है, ए नेक उस्ताद। read? And then he says to Jesus, "Oh, good teacher." वो सरदार है। He is the ruler. सरदार थोड़े से बड़े होते हैं, आपको पता है? Rulers are big-headed people. शायद कि वो अपने कबीले का सरदार हो, It could have been that he was the ruler of his tribe. शायद वो अपने घराने का सरदार हो, Could have been ruler of the house. शायद वो अकबर सरदार जैसे खाली नाम के सरदार हो। It could have been a ruler by name only. ये वाकई में सरदार था, So this man was actually a ruler इसलिए कि इसके पास दौलत भी थी, because he had wealth. है ना, उसके पास कुछ था He had something. और खुदावंद जानता है कि इसके पास क्या कुछ है। And God knew, Jesus knew what he had. हाँ, उसको पता है इसके पास क्या कुछ है And he knew what the ruler और had. ये क्यों मेरे पास आया है। And why he has come to me. वो खुदावंद का टेस्ट कर रहा है, खुदावंद उसको देख रहा है, So he was trying to test Lord Jesus Christ, and Jesus knew what he was doing. इसीलिए उसने खुदावंद की यकीनन शोहरत को सुना होगा। He must have heard about the good things of Jesus, what he was doing. इसीलिए एक सरदार होने के बावजूद भी वो खुदावंद यीशु के पास आया है। So even though being a ruler, he came to Jesus. और खुदावंद यीशु जिसके पास सर धरने की भी जगह ना थी। And Jesus, he didn't have anything to his name. हाँ, क्योंकि वो तो कभी गलील में, कभी यरू में, कभी नासरत में, कभी कहीं घूमते फिरते रहते थे। And Jesus used to go and preach to different cities and places all the time. He was traveling. और उसके पास आकर वो पूछ रहा है, And to him, he came and asked. और सवाल जो है वो भी बिल्कुल डिफरेंट है। And the question is very different. और पूछता है, ए नेक उस्ताद मैं क्या करूं And he asked him, "Good teacher, what shall I do ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। to inherit eternal life?" इसका मतलब है पैसा उसे मालूम था, पैसा मेरे पास है, हमेशा की जिंदगी नहीं है। So what it means is that this ruler knew that he had money but not eternal life. उसको ये पता था कि हमेशा की जिंदगी मेरे पास नहीं है, He knew that he didn't have eternal life. इसीलिए वो पूछ रहे मैं क्या करूं। That is why he came and asked, "What shall I do?" और खुदावंद यीशु ने उससे क्या कहा? And what did Jesus reply? खुदावंद ने उससे कहा कि तू मुझे क्यों नेक कहता है? So Jesus said to him, "Why do you call me good?" कोई नेक नहीं। He said, "There is no one good." हालांकि खुदावंद यीशु मसीह तो नेक थे Jesus was good, और उसने वो सच भी कहा था, and he said that what he said was true as well. है ना, वाकई में खुदा नेक थे। खुदावंद ने उससे कहा तू मुझे नेक क्यों कहता है? So Jesus asked him with a counter question, "Why do you call me good?" फिर खुदावंद कहते कोई नेक नहीं मगर एक यानी खुदा। Jesus said, "There is no one who is good, but only one, that is God." खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदा थे Jesus was God और himself. खुदावंद चाहते थे वो मुझे नेक उस्ताद तो कहता है, क्योंकि उसने उसे यही कहा, ए नेक उस्ताद, वो उसे खुदा मान के बात नहीं कर रहा। So this ruler, when he came and started talking to Jesus, he was just talking to Jesus as a normal man, not knowing or not thinking that he is God in flesh. एक टीचर समझ के उससे बात कर रहा है He वो। was just talking to Jesus as a teacher, हाँ, as a उसको rabbi. उस्ताद कह रहा है। He was calling him a rabbi, teacher. इसीलिए वो उससे कह रहा है कोई नेक नहीं। खुदावंद ने उसे जवाब दिया कोई नेक नहीं That is why Jesus replied and said, "There is no one good, मगर एक यानी खुदा। but only one, that is God." तू मुझे उस्ताद तो मान रहा है, तू मुझे खुदा नहीं मान रहा, जिंदगी की बातें पूछ रहे हैं मुझसे। And what Jesus was implying is that you are calling me good, but you don't consider me or think that I am God, and you're asking me the things of eternal life. मुझसे उस बादशाही की बातें मान रहा है, पूछ रहा है जो खुदा की बादशाही है। And you're talking about the things of God that are eternal. यानी खुदावंद उसके ज़हन को, सोच को पढ़ता है। So Jesus knew what was going through his thought process. अब खुदावंद उससे पूछ रहे हैं, And what Jesus was asking him. खुदावंद कह रहे हैं तू हुक्मों को तो जानता है, And Jesus said, "You know the law."
यानी कि खून ना करना, जिना ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने माँ बाप की इज्जत करना. So Jesus told him quickly told him, went through the commandments, the law, do not lie, steal, covet, and all that. उसने सारी बातें बोली कि हाँ मैं ये, और उसने बहुत फख्र से कहा, उसने कहा मैंने लड़कपन से इन सब पर अमल किया. And proudly this ruler replied, he said, since my childhood I have done all these things. लड़कपन की उम्र मालूम है कौन सी होती है? What is a childhood? वो उम्र जिसमें हम लोग बच्चों को बच्चा बच्चा करते रहते हैं. Yes, an age where a child is not fully grown, just the age of a child. जैसे 11, 12, 13 years, ये जो एज होती है ये लड़कपन की उम्र होती है. Probably less than 16, 11, 12, 13, 14 years old. हाँ, वो कहता है मैं लड़कपन से ये सब कुछ कर रहा था. And he said, I have been following these laws since I was a child. क्योंकि यहूदी शरीयत के मुताबिक इन हुक्मों को मानना बेहद जरूरी था. According to the Jewish law, you had to follow the 10 Commandments. और ये इन सारी बातों को मानता था. And this ruler, being a Jew, we believe that he understood what he was saying and he kept them. उसने बड़े फख्र से हाँ मैं ये सब कुछ करता हूँ. And very proudly he said, I have been doing these. यीशु ने कहा अच्छा तू सब कुछ करता है. And Jesus said, you've been keeping all the law. उसने कहा लड़कपन से जब से मैं इतना सता मैं तो ये सारी मैं इतना सता जब से मैं चर्च जा रहा हूँ. And जैसे आज मसीह कहते हैं. And he replied, yes, since my childhood, I have been doing things just like Christians say, I've been going to church since my childhood. हम तो छोटे छोटे थे, हमारी माँ तैयार करके संडे स्कूल भेज देती थी. We were in our child age and we used to go to Sunday school. फिर हम बड़े हुए जब भी चर्च जाते थे. Where we grew and then we started going to church. फिर हम थोड़े बड़े हुए तो हम यूथ में भी आ गए थे, हम काम करते थे. And then we grew a bit more and we started helping in youth ministry. हम तो चंदा भी देते थे. We used to give offering. अरे हम तो हदिया भी देते हैं. We used to give tithes. हाँ हम सब कुछ करते हैं. We have been doing everything. बड़ा चंदा डालने वाले हैं. We give more offering. कुछ लोग बड़ा बड़ा चंदा डालते हैं. Many people give more. वो सोचते हैं बड़ा चंदा डालने से खुदावंद को हम अपना कर लेंगे. So by doing so, they think that if they give more money to God, they will put God in their pockets. याद रखिएगा खुदावंद को इन चीजों की जरूरत नहीं है. Please make note of this. God does not need your money. खुदावंद आपको चाहता है सिर्फ उसके पीछे चलें. What God wants is that you follow Him. यही खुदावंद ने इसे कहा. This is what God told खुदावंद ने यहाँ पे इसे एक बात की है. And God said to him. खुदावंद ने उससे कहा. Jesus said to him. यीशु ने ये सुनकर उससे कहा. What did Jesus reply? अभी भी तुझमें एक बात की कमी है. And Jesus said to him, there is one thing that is in you. एक बात की अभी भी तुझमें कमी है. Jesus said there's one thing lacking in you. अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे. He said sell everything that you have and give it to the poor. तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा. And what did Jesus say? Jesus told him, look, you will have treasure in heaven. खुदावन छोटी मोटी बात की, छोटी मोटी चीज की बात नहीं कर रहा. Jesus was not talking about any earthly thing. आप खुदावन खजाने की बात कर रहे हैं. Jesus was talking about और treasure. फिर आसमान के खजाने की बात And the कर रहे हैं. treasure of heaven. खुदावन ने कहा तुझे आसमान पे खजाना मिलेगा. And Jesus said to him, you will have treasure in heaven. उसने बोला ये सब कुछ जाकर बेचकर गरीबों को बांट दे. And Jesus told him, you go and sell everything that you have in the world and give it to तुझे the poor. आसमान पे खजाना मिलेगा. You will get treasure in heaven. मेरे पीछे हो ले. Come, follow me. बेचना है. You want to sell? बांटना है. You want to distribute? फिर उसके पीछे चलना है. And then you have to follow Jesus. सिर्फ यही उसने उसे कहा था. This is what he said. उसका रिजल्ट क्या निकला? And what happened? रिजल्ट देखिए उसका. What was the result of this लिखा है conversation? ये सुनकर वो बहुत गमगीन हुआ. It says, when he heard these things, he became sorrowful. क्योंकि वो बहुत बड़ा दौलतमंद था. For it is written, he was very rich. बहुत अमीर था. Very rich. ये सब कुछ बेचना आसान काम नहीं था. To sell everything as a rich man, this was not an easy task. लेकिन बाइबल में लिखा है जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल लगा रहेगा. But the Bible says, wherever your treasure is, your heart is. इसका माल जमीन पे था. So this ruler's treasure or wealth was in the world. और वो जमीन से ही प्यार कर रहा था. So he was loving the world. उसको पता नहीं था कि खुदा मुझसे जमीन के बाद आसमान की बात कर रहा है. And he did not realize that God was talking to him about heaven. खुदा मुझसे जमीन के खजाने की नहीं आसमान के खजाने की तरफ दिखा रहा है. What Jesus was pointing him towards heaven. इसीलिए मत्ती की किताब में लिखा है जहां जहां जंग लग जाता है वहां अपने लिए माल जमा ना करो. That is why in the book of Matthew, Jesus said,
do not gather anything or store anything where anything can come and rot your possession. कहता अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो। मत्ती की किताब 6 बाब उसकी 19 आयत। Matthew chapter number 6 verse 19 it says, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो। it says, do not lay up for yourselves treasures on earth जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है, where moth and rust destroy, और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, and where thieves break in and steal. बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो। But lay up for yourselves और जहाँ ना कीड़ा खराब करता है, But lay up for yourselves treasure in heaven where neither moth nor rust destroys, हाँ, ना जहाँ जंग लगता है, ना वहाँ पे चोर नकब लगाते, ना चुराते हैं, and where thieves do not break in and steal. और जहाँ तेरा माल वहीं तेरा दिल लगा रहेगा। For where your treasure is, there your heart will be also. यहाँ पर जो माल जमा होता है, So whatever the treasure that you collect here in यहाँ this पे जो world, माल जमा होता है, कलाम कहता है उसको कीड़ा खा जाता है। and the word of God says that the moth will rot that, will कौन eat सा that. कीड़ा है जो उसको खाता है? What is this this insect we're talking about? किस कीड़े की बात है? वो कीड़ा नहीं जो यहाँ पे आपको चलते हुए या जो किस मुर्दे के ऊपर चढ़ा हुआ खा रहा होता है मुर्दे को। No, we're not talking about the insects that you can see and rot. यहाँ पे उस कीड़े, यहाँ पे इंसान को कीड़ा कहा गया है। So what over here the insect or the moth is called humans. यानी तू तो मर जाएगा, Means you will die, और तेरे बाद ये तेरे कीड़े, ये तेरे बच्चे, ये तेरी औलाद जो है ये इसको खा जाएगी। and we're saying is that after you die, your children will eat up your wealth. उनको उसने कीड़े का निशान दिया है, And what Jesus is saying, your children are the moths. क्योंकि बाइबल में याकूब को भी कहा गया है कीड़ा। Excuse me. In Bible, Jacob was called moth as well. याद रखिएगा, अपने बच्चों के लिए उतना ही करें, उतना ही पढ़ाएं, लिखाएं, जवान करें, तरबियत करें कलाम के मुताबिक। मत सोचें हम इसके लिए ये कर लें चाहे कितना ही नाजायज करके जाएं, या इसको ये दे दें चाहे कितना ही नाजायज कर दें। So please bear this in mind. Do what you want to do for your children according to the word of God, rather than spoiling them. ऐसा होता है कि माँ बाप खुद भी बच्चों को खराब कर रहे होते हैं। So what we have seen and understand as well, that even parents, they spoil their children. बच्चों को जहन्नम की तरफ लेके जाने वाले भी बहुत दफा माँ बाप खुद होते हैं। Many times parents they take their or direct their children towards hell. क्योंकि माँ बाप खुद खुदा के पास नहीं होते, तो जिस तरफ को माँ बाप जा रहे होते हैं उस तरफ को औलाद जा रही होती है। And the reason is because the parents themselves, they are not right with God. यहाँ पे कलाम में हमने देखा, So what we have understood, यहाँ पे देखा उसने कहा कि गरीबों को बेच दे, and Jesus was saying to him that go sell and give it to the poor. गरीबों को दे, Give it to the poor, तुझे आसमान पे खजाना मिलेगा। and you will have a treasure in heaven. और वो शख्स छोड़कर चला गया, And this rich man, ruler, he left Jesus वो गमगीन हो गया, because he was sorrowful. उसके पास दौलत बहुत थी, He had a lot of money, बहुत दौलत थी, he had a lot of wealth, उसको जमीनी दौलत बहुत पसंद थी, but he loved and treasured the wealth of the world उसको more. आसमान की दौलत का अंदाजा नहीं था, He did not know or understood the wealth उसने of the खुदा की heavens. अगली बात की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, He did not consider what Jesus was saying. उसने आधी बात तो सुन ली, He heard a bit. उसने आधी बात सुनी कि तू बांट दे, He only heard a bit where Jesus said, "You उसने go अगली sell." बात में गौर नहीं किया जो खुदा ने उससे की थी। He did not consider what Jesus said to him next. अगली बात खुदावन ने की, तुझे आसमान पे खजाना मिलेगा। Because Jesus said to him that you will have treasure in heaven. उसने जमीनी खजाने को अहमियत दी बनिस्बत आसमान के खजाने की। So what he did was he gave importance to the wealth of the world but did not consider the treasure of heaven. उसने कहा तुझे आसमान पे खजाना मिलेगा, And Jesus said to him, you will have treasure in heaven. लेकिन शर्त यह है कि मेरे पीछे होल। But there's a condition, you follow me. अगर आप भी बादशाही में जाना चाहते हैं If you want to enter heaven, तो दुनिया से निगाहों को हटाने की जरूरत है। you have to keep your eyes away from the things of अगर the हम भी world. चाहते हैं कि हम जैसे इसने पूछा कि किस तरह मैं जिंदगी, हमेशा की जिंदगी का वारिस हो जाऊं, And as the ruler asked, how can I inherit eternal life? अगर हम भी जिंदगी के वारिस होना चाहते हैं, And if we want to inherit eternal life, दुनिया के खजाने से नजरों को हटाना पड़ेगा, we have to keep our eyes away from the treasures of the दुनिया world. से आंखों को हटाना पड़ेगा, We have to keep our eyes away. और फिर
आकर यीशु के पीछे चलना पड़ेगा। And then we must follow Jesus. शायद मेरा और आपका खजाना हमारे बच्चे ही हो, It could be that your treasure is your children. शायद आपका शौहर ही आपका खजाना हो, It could be your husband is your शायद treasure. आपका पैसा आपका खजाना हो, Could be your money, your शायद wealth. आपकी जॉब आपका खजाना हो, Could be your job. शायद आपके रिश्तेदार अजीज वो आपके लिए खजाना हो। Or could be your relatives, your friends. जो चीज आपको खुदा से ज्यादा प्यारी है वो आपका खजाना है। So anything that you love more than Jesus becomes जिस your किसी treasure. को आप खुदा से ज्यादा अहमियत देते हैं वो आपका खजाना है। So if you give importance to anything or any man, that becomes your उसने treasure. कहा ये खजाना है, Jesus said, this is the treasure. उसने कहा ये सच्चे मोती हैं, And Jesus said, these are the true pearls. उसने कहा ये शहद के छत्तों से ज्यादा मीठा है, And Jesus said, this is sweeter than the honeycombs. उसके अंदर खजाना छुपा हुआ है। You have treasure in the word of जो God. कोई इसके पीछे ना चले Whoever will not follow the word of God, वो दुनिया के खजाने के अंदर फंसा हुआ है। that person is entangled in the treasures of the उसको world. दुनिया के खजाने को छोड़ने की जरूरत है So you have to leave the treasures of the world और यीशु के पीछे चलने की जरूरत and है। follow Jesus. उसको भी कुछ छोड़ना था फिर पाना था। So he had to leave something in order to gain something. अगर हम कुछ नहीं छोड़ेंगे हम कुछ नहीं पाएंगे। If we will not leave anything for Jesus, we will not gain अगर हम anything. कहें यीशु को भी पकड़े रहे और इसको भी पकड़े रहे, मुमकिन नहीं है। If we say that you want to have Jesus in your life and the things of the world, it doesn't work like that. बादशाही को पाने के लिए जमीनी खजाने को छोड़ना पड़ेगा। In order to inherit the kingdom of God, you have to leave the things of the world. ये खुदावन के कलाम की सच्चाई है। This is the true word of God. उसने कहा आकर उसको छोड़ के आप फिर मेरे पीछे हो। And what Jesus said you have to leave that, divide that, give it away, give it up, and then follow me. लिखा है कि वो फिर छोड़कर चला गया। And then what did he do? He left Jesus. लिखा है वो सुनकर बहुत गमगीन हुआ क्योंकि वो बड़ा दौलतमंद था। The word of God says that he became sorrowful. Why? Because he was very rich. अब दौलतमंद का क्या है? What holds a rich बाइबल में एक person? दौलतमंद का जिक्र है। There is a rich man. दौलतमंद के लिए कहा गया कि उसने बहुत कमाया, उस साल बहुत उसका अनाज हुआ, उसने कहा मैं कोठियां बनाऊंगा। रात को जब वो बिस्तर पे लेटा बोला वाह इस साल तो वारे नहीं आ रहे, बड़ा पैसा आया। अब ऐसा करूंगा कि मैं बड़ी कोठियां करूंगा, उसके अंदर जमा करूंगा। ऐ मेरी जान, उसने अपनी जान से बात की, मतलब अपने आप से बात की और अपने आप से बात करके कहने लगा ऐ मेरी जान अब तू मौज कर, पूरी जिंदगी के लिए तेरे पास बहुत है। और उसी रात उसके पास फरिश्ता बोला तेरी जान ले ली जाएगी। So there's a story in the Bible talking about the rich man, and this rich man, he had a very good year financially. He gained a lot, he multiplied whatever he had, the stock, and he was lying on his bed and he said to himself, my soul, be glad because you have gained a lot of wealth. And the same night the angel came and said to him, fool, your life is taken away from you tonight. कहाँ ले गया उसका खजाना उसको? So where did this rich man's wealth took him? कहा आज ही तेरी जान ले ली जाएगी। The angel said to that rich man, tonight your soul is required of अब thee. क्या ख्याल है कि जब जान ले ली गई होगी तो उस खजाने को किसने इस्तेमाल किया होगा? So if that rich man died that night, where did his treasure go? Who ate his treasure? कीड़ों ने खाया होगा। The moth ate his treasure. यही लिखा है, अपना माल उधर जमा कर जहां ना कीड़ा है ना जंग लगता है। What does the इधर Bible जंग भी say? लगता है। अगर बच्चे नहीं होंगे तो गवर्नमेंट खा जाएगी और बच्चे होंगे तो बच्चे खा जाएंगे और आप कमा के बच्चों के लिए बूढ़े हो जाएंगे, एंड टाइम में उठाएंगे वो ओल्ड होम में डाल देंगे। इस मुल्क में ओल्ड होम में डालते हैं, अब अपने मुल्कों के अंदर भी ओल्ड होम में डालना शुरू कर दिया है। तो भाई खुदा को खुश करना शुरू करें, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत, अपना पैसा खुदावंद को देना शुरू करें, खुदावंद के लिए करना शुरू करें, पीछे चलना शुरू करें। So we must give ourselves to Jesus Christ fully. Why? Because when we die, our children or probably government will eat up all your wealth. अभी हमने पढ़ा कि जहां कीड़ा जंग लगाता है, So the Bible says we must gather our treasures in heaven where no moth or nothing can rust.
इसीलिए खुदावंद ने आगे चल के क्या कहा? What did Jesus say? खुदावंद ने क्या कहा जब वो चला गया? What did Jesus say in regards to this person when he left? खुदावंद ने कहा दौलतमंदों का खुदा की बादशाही में दाखिल होना कैसा मुश्किल है। And Jesus said it is very, very, very hard for a rich man to enter the kingdom of God. खुदावंद ने कहा क्योंकि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। And Jesus said in verse 25, "For it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God." इसका मतलब है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। So it means is that it is very difficult, probably very, very unlikely that a rich man can enter a kingdom of God. दौलत डिफरेंट तरह की मैंने बताई कि हो सकती है। So we have told you about different kinds of wealth. शायद आपके बच्चे आपकी दौलत हो, It could be your children or your wealth. शायद आपकी जॉब आपके लिए दौलत It हो, could be your job. क्योंकि जॉब चलेगी तो खाएंगे किधर से? If you lose your job, where will you eat from? बच्चे चले गए तो सारी दुनिया ही चली जाएगी। If your kids leave you, then you say, my life has no meaning, finished, ended. मत सोचिए खुदावंद से बड़ा कोई नहीं है। Please do not forget that there is nothing bigger than God. खुदावंद सबसे He's बड़ा enough for है। you. खुदावंद सबसे बड़ा है, He's greater than all. अजीम है, He is a great God, कुदरत और कमाल का मालिक है। and He is a wonderful God. वो काम करेगा आपकी जिंदगी में जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। And He will do such a thing in your life which you never imagined. कलाम में लिखा है दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। The Word of God says that for a rich man to enter the kingdom is very difficult. इसीलिए उसने कहा वो सुई का नाका होता है ना, वो जो छोटी सी सुई होती है उसमें से ऊंट नहीं गुजर सकता। So Jesus सवाल ही said, पैदा नहीं होता। have you ever seen an eye of a needle? The small thing where the thread passes through? That is why Jesus said that it is easy for a camel to go through that. बहुत मुश्किल है। A camel cannot go through the eye of a needle, by और the way. उसके अलावा इजराइल के अंदर यरूशलेम में एक जगह है, सुई का छोटा सा एक गेट है, वो बहुत छोटा सा गेट है, जिसमें से एक ही आदमी गुजर सकता है, बमुश्किल। In Israel, there is a place, it's called an eye of a needle because it's very tiny, and there's an arch on top of it. It's like a small gate, and only one person can pass through it. अगर ऊंट को निकालना किस कदर मुश्किल होएगा। So if only one person at a time can pass through that gate, it's very difficult to get a camel through it, you know. मेरे ख्याल में अगर कैमल को निकालना होगा तो पहले कैमल को बिठाएंगे, फिर उसपे से सामान उतारेंगे, फिर आधा मोड़ तोड़ के कैमल को निकाले तो शायद जख्मी हो कोई कैमल निकलेगा, वरना निकल सकता ही नहीं है। कलाम कहता है नहीं निकल सकता, तो इसका मतलब कि नहीं निकल सकता। The word of God is very, very clear on this passage regarding the rich man. You cannot enter while your heart is towards your wealth. कहता है ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है। So what Jesus implies here, look his focus, he says it is easy for a camel to go through the eye of the needle. क्योंकि उसमें से जब निकालते थे तो ऊंट को बिठाते थे, सारा सामान उतारते थे, फिर उसको बिठा के कैमल को उसके नीचे से निकाल लेते थे। And what we मतलब सारा बोझ जो उसके ऊपर से होता था वो उतारा जाता था, क्योंकि लादने के लिए, मूव करने के लिए, सामान को इधर उधर करने के लिए ऊंटों को, गधों को इस्तेमाल किया जाता था। So what I've just told you about a place in Israel where there's an arch and it's a door. What they used to do is to, if they have, because they used camels and donkeys and horses at that time for the means of travel, they had to unload the camels and then they have to lower it down, and then probably camel would have got hurt. सुनने वालों ने कहा फिर कौन निजात पा सकता है? And then it says, then who can be saved? क्योंकि खुदा तो कह रहे हैं कि सुई में से वो नहीं गुजर, दौलतमंद नहीं जाए, तो लोगों ने कहा जो आसपास बैठे थे कौन जा सकता है फिर? So the people who were sitting there, they asked Jesus the question, who then can be saved? उसने कहा जो इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। But then Jesus said, what man cannot do is possible with God. इसका मतलब बहुत सारे काम जो हम सोचते हैं कि हो नहीं सकते, अगर हम खुदावंद के पास लाएंगे तो वो हो सकते हैं। Amen. Hallelujah. So many things that we think cannot happen or are not possible, you bring them to Jesus, you bring them to God, and they will be possible. क्योंकि दौलत इंसान को खत्म कर देती है। Because the wealth will kill you from inside. मेरे साथ 16 बाब देखिए। हाँ जी, लूक का इसी का Luke chapter 16 और उसकी 14 आयत से देखेंगे एक बार। from verse 14. लिखा है फरीसी जो जरदोज थे। Now the Pharisees, who were the lovers of the money, लिखा है इन सब बातों को सुनकर उसे ठट्ठों में उड़ाने लगे। यानी लोग खुदावंद की ऐसी बातों को सुनते थे ना,
तो वो ठट्ठों में उड़ाते थे। जो दौलतमंद होते थे वो खुदावंद यीशु मसीह का मजाक उड़ाते थे, तो उसकी बातें सुन के मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं। So it says, now the Pharisees, who were the lovers of the money, also heard all these things, and they derided him. उसने उनसे कहा, And they said to him, तुम वो हो कि आदमियों के सामने अपने आप को रास्तबाज ठहराते हो, and Jesus said to them, you are those who justify yourselves before men, लेकिन खुदा तुम्हारे दिलों को जानता है, but God knows your hearts. क्योंकि जो चीज आदमियों की नजर में आला कदर है वो खुदा के नजदीक मकरूह है। And what did Jesus say next? He said, for what is highly esteemed among men is an abomination in the sight of God. और फिर आगे जाके 16 आयत इसकी देखेंगे। And verse 16 it says, उस वक्त से खुदा की बादशाही की खुशखबरी दी जाती है और हर एक जोर मार कर उसमें दाखिल होगा। and they said, the law and the prophets until John, since that time the kingdom of God has been preached, and everyone is pressing into it. इसका मतलब है कि आप जोर मार के बादशाही में दाखिल होंगे। So what it means is that you have to press in hard. अपने आप को मारना पड़ेगा बादशाही में जाने के लिए। You have to deny yourself to enter the kingdom of अपने God. आप को छोड़ना पड़ेगा। You have to leave yourself. अगर हम इंसानों पे नजर लगाएंगे तो हम जाने वाले नहीं हैं। If we will set our eyes on human beings, then we will not enter the kingdom of अब God. पतरस जो उसके साथ था उस वक्त, And Peter, who was with Jesus, पतरस ने उस वक्त क्या कहा? what did he said to Jesus? पतरस ने कहा, देख हम तो अपना घर पर छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। So if you look at Luke 18, what did Peter said to Jesus? Peter said to Jesus, Jesus, we have left everything for you. उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, ऐसा कोई नहीं जिसने घर या बीवी या भाइयों या माँ बाप या बच्चों को बादशाही, खुदा की बादशाही की खातिर छोड़ दिया हो और इस जमाने में कई गुना ज्यादा ना पाए और आने वाली जिंदगी में हमें, आने वाले आलम में हमेशा की जिंदगी। So what Jesus said to the answer to Peter was, when Peter said, we have left everything for you, Jesus said to Peter, anyone who leaves his wife, his parents, his children, or anything for my sake and follows me, he will have blessing on this earth and much more to come. इसका मतलब है कि पतरस ने और उसके साथियों ने और बहुत सारों ने, हम सोचते हैं ये बहुत मुश्किल, घर छोड़ना कितना मुश्किल है, कैसे छोड़ दें? बच्चे छोड़ दें कितने मुश्किल है, कैसे छोड़ सकते हैं? असि तो एक टाइम दो टाइम कार नहीं छोड़ के आ सकते है ना? So what it means is that the followers of Jesus, they must have left parents, houses, children, बीवी छोड़ी है, बीवी छोड़ी है, we left wives, घर छोड़ा है, houses, भाई छोड़े हैं, brothers, माँ बाप छोड़े हैं, parents, बच्चे छोड़े हैं, children, खुदा की बादशाही के लिए, for the kingdom of God. इसका मतलब छोड़ा है किसी ने। It means they left. ये कोई ऐसी झूठी मूठी बातें नहीं है। These are not fable stories. ये कोई ऐसी फुकट के फायर नहीं मर रहा यहाँ पे। Yeah, these are not stories that we're hearing. वाकई में कुछ लोगों ने छोड़ा है। This means that these people actually left something for God, for क्योंकि Jesus. खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए कह रहे हैं, That is why Jesus कि said, अगर कोई घर, बीवी, भाइयों, बच्चों, माँ बाप को मेरी खातिर छोड़े तो, so that is why Jesus said to him, if anyone leaves their parents, the children, the family for my sake, कहता है इस जमाने में 100 गुना से ज्यादा, he said they will receive much more, 100 times fold in this मतलब world. कई गुना ज्यादा जिसको आप गिन नहीं सकते, Means you will get things you cannot count them, the और blessings. फिर आने वाले आलम में भी हमेशा की जिंदगी। And he said you will have much more in eternal life. क्योंकि पतरस ने छोड़ा था, Because Peter left. पतरस की भी फैमिली थी, Peter had family. और पतरस ने छोड़ा था, Peter left his family. इसीलिए पतरस पूछ रहा है। That is why Peter आप asked. देखेंगे पतरस ने कहा छोड़ा। Let's open and we'll see where Peter left his देखिए family. मत्ती की किताब उसका 4 बाब, Matthew chapter number 4. खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी अपनी खिदमत को शुरू किया, When Jesus started his ministry, खुदावंद यीशु मसीह ने खिदमत को शुरू किया, when Jesus started his ministry, तो वो गलील की झील के पास से गुजर रहे थे। so he was passing by the lake of Galilee, और वहां पे 18 आयत से हम देखेंगे, and we will read from verse 18. लिखे, दो भाइयों यानी शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई इंद्रियास को झील में जाल डालते देखा। And Jesus, walking by the sea of Galilee, saw two brothers, Simon called Peter and Andrew his brother,
casting a net into the sea, हाँ, क्योंकि वो माहीगीर थे for they were fishermen. और उनसे कहा And he said to them, मेरे पीछे चले आओ follow me, तो मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। and I will make you fishers of men. लिखा और वो फौरन जाल छोड़कर उसके पीछे चल दिए। What it says they immediately left their nets and followed him. उन्होंने फौरन जाल को छोड़ा। They immediately left their nets. जाल क्या था? What was the net? जाल उनकी नौकरी थी। This was their job, their वो livelihood. मछलियां पकड़ते थे, They used to catch fish फिर मछलियों को बेचते होंगे, and sell them. वो उनका कारोबार था। This was their business. खुदावन की आवाज पे कारोबार को छोड़ दिया। On the voice of the Lord, they left their business. लेकिन ऐसा नहीं था कि कोई उनके माँ बाप नहीं थे। It doesn't mean they had no parents. पतरस और अंद्रियास कोई आसमान से तो नहीं गिरे थे। So Peter and Andrew, they didn't come from heaven. यकीनन उनके कोई बहन भाई भी होंगे, It means they had brothers and sisters यकीनन उनके माँ बाप भी होंगे, and parents. लेकिन जब यीशु ने आवाज दिया When Jesus तो called उन्होंने them, उसी वक्त जाल को उधर छोड़ा, they left their nets जाल को छोड़ा, उसके पीछे चल पड़े। and then they followed him. हालेलुया। Hallelujah. थोड़ा सा आगे जाएं, If you go further down, अब यीशु ने चलना शुरू किया, दो लोग इसके पीछे चल रहे हैं। and when Jesus was walking, two people are following his new तस्वीर में disciples. देखिए, यीशु आगे आ गया, दो लोग उसके साथ चलने शुरू हो गए। Just imagine Jesus following and two other are following him. और लिखा है वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों को, And it says going on from there, he saw two other brothers, उसने जब्दी के बेटे याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। James the son of Zebedee and John his brother. वो अपने बाप जब्दी के साथ कश्ती पर जालों की मुरम्मत कर रहे थे। So they were in the boat with Zebedee, their father, mending their nets. वो अपने बाप के साथ थे। So Zebedee, John and his brother James, they were in the boat with their father mending nets. लिखा है वो फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। So what does it say? It says immediately they left their boats, nets and their father. उन्होंने बाप को भी छोड़ा है। So they left their business, बाप their तो कश्ती livelihood. में था, माँ शायद घर पे होगी, The father was with them in the boat and could have been the mother at home. और बाकी बहन भाई शायद घर पे होंगे। Or other brothers and sisters be at their home. इन्होंने छोड़ा है, They left everything for Jesus. उन्होंने बाप से परमिशन नहीं ली। They didn't ask their father. पतरस इंद्रियास गए नहीं। Peter and Andrew did not go to their parents and ask for एक permission. मिनट यीशु जरा प्लीज सब्र कर जाए, मैं रोटी दिया मां, मच्छियां फड़ियां ने दो चार फड़ामा, फिर मैं जाऊंगा। ऐसा नहीं हुआ। They didn't say to Jesus, wait for 2 seconds, let me talk to my father. उन्होंने उसी वक्त छोड़ा They left everything और वो immediately खुदावन के पीछे चल and पड़े। they followed Jesus. जो ऐसे छोड़ेगा And such a person who will leave everything for कई Jesus, गुना से ज्यादा you will get more than you have ever dreamed और of. हमेशा की जिंदगी भी, And eternal life. हमेशा की जिंदगी Eternal life. छोड़ने वाले को मिलेगा। And you will get this. जो कुछ छोड़ेगा If you leave something, वो कुछ पाएगा। you will have. लेकिन अगर हम इसको भी पकड़ के रखना मांगते But हैं if you want to get hold of और the things उसको भी पकड़ना मांगते and get hold of the हैं kingdom तो वो of हाथ God, में आने वाला नहीं है, you cannot get that. वो उसे पकड़ नहीं सकते आप, You cannot get hold of the क्योंकि उसने kingdom of कहा God. इसको छोड़ फिर मेरे पीछे आ। What Jesus said, you have to leave one and then come after me. हमें हमारी जॉब्स बहुत प्यारी हैं, We love our jobs. हमें अपने बच्चे बहुत प्यारे We हैं, love our children. इनके भी बिजनेस थे, These people had their own ये businesses. बिजनेसमैन थे लोग, These were businessmen. बड़ा काम था बिजनेस का वहाँ पे, Yes, catching fish was a big lucrative money, big money. बहुत जबरदस्त फिश है, कभी जाएंगे तो आप खा के देखिएगा, बहुत जबरदस्त फिश है वहाँ की। Yes, if you get a chance to go to Israel, good fish, go eat. हाँ, ये कारोबार अभी भी चल रहा है वहाँ पे। And still in Israel, there are big businesses. This fishing business is very, very popular. उन्होंने उस फिश का नाम ही पीटर फिश रख दिया, पीटर के नाम पे पीटर फिश हो गई है वो। There is a restaurant and it's called Peter Fish. और आप उस फिश को एंजॉय करेंगे, आप खाएंगे, आप एंजॉय करेंगे, पीटर को याद करना कहाँ से पकड़ा था उसको। So when you eat that fish from that restaurant, you remember where Jesus और put फिर Peter ये भी from. याद कीजिएगा कि उसने जाल छोड़ा था, कारोबार छोड़ा था, And please remember what Peter did. He left his business for और ये भी Jesus. याद रखिएगा कि वो आसमान पे उसके साथ है। And now remember that Peter is in heaven with इसीलिए उसने Jesus. पीटर से यहाँ पे बात की है। That is why to Peter Jesus spoke. उसने कहा कोई ऐसा है नहीं कि अगर कोई मेरी खातिर छोड़े तो मैं उसे छोड़ दूं।
And that is what Jesus replied to Peter, there is no one who leaves his family, his business, his work for me, and I will not leave. मैं तुमसे सच कहता हूँ. Jesus said to him, I say to you. और हर बात खुदावंद ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूँ. And every time Jesus had to emphasize something, he said, I truly say to you. मेरा खुदा सच्चा खुदा है. Our God is a true God. उसने कहा अगर कोई मेरी खातिर इन चीजों को छोड़ेगा तो उसे कई गुना से ज्यादा मिलेगा. So Jesus said, if you leave anything for my sake, you will get much more. और हमेशा की जिंदगी भी. And eternal life as बादशाही well. में दाखिल होने का तरीका मैंने बता दिया. And we have told you how you can enter the kingdom of God. छोड़ने की जरूरत है. So now it is you who decide you have to leave. अब जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, The things that you are running after, वो कभी आपकी हो नहीं सकती. these things cannot be yours anyway. क्योंकि कलाम में लिखा है लालच जो है वो बुत परस्ती के बराबर है. So what the Bible says is that the covetousness is just like idol worshipping. जिस चीज को हम खुदा से ज्यादा प्यार करते हैं वो हमारा खुदा है. So the Bible says anything that we love more than God becomes our God. क्योंकि मत सोचिए कि हिंदुओं के बुत होते हैं तो वो उनका ये मूर्ति पूजा वही करते हैं. हमारी भी एक मूर्त बनी हुई है और वो मूर्त क्या है? हमारी जॉब हमारी मूर्त है, हमारे बच्चे हमारी मूर्त है, हमारी दौलत हमारी मूर्त है, हमारे घर के काम हमारी मूर्त बन के हमारे सामने खड़े जाते हैं और हम वो काम वो टाइम जो खुदा को होता है हम उनकी पूजा करते हैं. ये पूजा है. चाहे आप उनके लिए खाना बना रहे हैं, आप किचन में खड़े हैं, इसका मतलब वो आप उनकी पूजा कर रहे हैं. Yes. जिस चीज को खुदा से ज्यादा फौकियत देंगे वो आपके लिए खुदा होगा. The thing you give more time to or you follow more, you love more than God becomes your God. It could be anything. It doesn't have to be a statue or an idol. हाँ, मत सोचें कि शायद दौलत जो है, पैसा जो है, वही खुदा उसी के लिए मना किएगी. ये सब चीजें भी आपकी दौलत और आपका खजाना है. So don't think that we're talking about paper money or contactless money. No, we're talking about every kind of wealth or prosperity. हाँ, जो भी आपके पास है. Whatever you have. आप खुदावंद से मांगे आप पर फजल की दौलत करे. You should ask God that God should shower, rain His grace upon आपको you. दौलत की जरूरत है. We need wealth. लेकिन हमें किस दौलत की But जरूरत है? what kind of wealth we should look for or ask for? हमें खुदा के फजल की दौलत की जरूरत है. What we need is the grace of God, more abundant grace, जो वो हमें इफरात के साथ देने के लिए तैयार है. which He wants to shower us abundantly. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. देखिए मेरे साथ दूसरा करंथियों उसका 9वां बाब उसकी 8वीं आयत. 2 Corinthians chapter number 2 verse 8. वर्स हाँ चैप्टर 9 और उसकी 8वीं और 9वीं आयत देखेंगे. 2 Corinthians chapter 9 verse 8 and 9. लिखा है खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत के साथ कर सकता है. It says, and God is able to make all grace abound towards you. ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला. हर चीज जो आपकी जरूरत है खुदा आपको आपकी जरूरतों के मुताबिक दे. He says that you, always having all sufficiency in all things, और हर एक नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ रहा करे. हालेलुया. may have an abundance for every good work. चुनाचे लिखा है, As it is written, उसने बखेरा He has dispersed abroad, और उसने कंगालों को दिया. He has given to the poor. रोटी की बात नहीं हो रही, फजल की बात हो रही है. हालेलुया. We're not talking about bread, we're talking about grace और here. फजल की बात हो रही है. जो कंगाल हैं, जो फजल के लिए भूखे हैं, उन पर फजल को नजात को कसरत से नाजिल करता And the है. ones who are hungry for the grace of God, God will shower, rain His grace on you. और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, In verse 11 it says, और तुमको हर चीज को इफरात से पाकर सब तरह की सखावत करोगे जो हमारे वसीले से खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी का बाइस होती है. it says, while you are enriched in everything for all liberally, which causes thanksgiving through us to God. खुदावंद से मांगे Ask God कि खुदावंद आपको एक अच्छा दिल बख्शे. that God gives you a good heart. ऐसा नहीं कि खुदावंद आपको बहुत सारी दौलत दे. मैं आप बताती हूँ, मेरा एक भाई है, वो पता नहीं कब से 1 करोड़ 2 करोड़ के प्राइस बॉन्ड की दुआएं कर रहा है. She has a प्राइस बॉन्ड नहीं brother. मिला उसको, पता नहीं बचपन से, अब जब से सुन रहे हैं, मतलब जब से हम सब कवारे बहन भाई इकट्ठे रहा करते थे, उस वक्त से वो एक प्राइस बॉन्ड के लिए दुआ कर रहा है.
कि 1 करोड़ मिलेगा तो 1 लाख उसको दूंगा, 4 लाख उसको दूंगा। अभी तक वो नहीं मिला बड़ा भाई, तकरीबन और 2-4 सालों में 70 साल का हो जाएगा। So her brother has been praying for a prize bond, probably $1 million or $2 million, so he can distribute that money and help others. अच्छा है, गरीबों की अभी भी मदद करता है, इधर कुछ ना कुछ करता रहता है। लेकिन अगर मेरे ख्याल में उसको मिल जाए ना तो वो कहता है मैं ये करूंगा, वो इससे पहले कि वो खुदा को मांग लेता है। दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। मैं उसे कहती तेरा बॉन्ड पता नहीं कभी निकलेगा, तू किन चक्करों में फंसा हुआ है। So he's been praying for God for a lottery, for $1 million or $2 million, but she always says that you do not run after this, but be with God. कलाम कहता है ना तुम दुनिया में कुछ लाए हो ना लेके जाना है। The word of God says you did not bring anything into the world and neither you will take anything from it. जिस वक्त अय्यूब से सब कुछ छिन गया था, अय्यूब ने कहा नंगा मैं माँ के पेट से आया, नंगा मैं जाता हूँ। So when Job lost everything, what did Job say? Job said, naked I came and naked I will go. खाली आए हैं, खाली ही जाएंगे। We came empty-handed and we will leave empty-handed. लेकिन एटलीस्ट जब हम जाएं, हमारे साथ खुदावंद की एक बड़ी निजात हमारे साथ हो। At least when we go, we leave that we should be able to take the grace of God with us and others with us. पहला तिमोथियस 1 Timothy, उसका 6 बाब में सब निकालिए। 1 Timothy chapter number 6, उसकी 6 आयत में लिखा है। 1 Timothy chapter 6 verse 6. लिखे हाँ, दीनदारी कनात के साथ बड़े नफा का जरिया है। It says, now godliness with contentment is great gain. इसका मतलब है हमें खुदा के खौफ में जिंदगी को गुजारना चाहिए। So what it means is that we should live our lives in the fear of God. 7वीं आयत में लिखा है क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए हैं, ना इसमें से कुछ ले जा सकते हैं। What does the verse 7 says? It says, for we brought nothing into this world and it is certain that we carry nothing out. बस अगर हमारे पास खाने और पहनने को है तो इसी पर कनात करें। And it says, and having food and clothing, with these we shall be content. So अगर आपके पास खाने और पहनने को है तो इसी पे कनात करें और शुक्रगुजारी करें। And if you have food to eat and clothes to wear, be content with this. मत सोचें कि यहाँ से हमें यहाँ पहुँचना है। Don't think that you have to go from here to there, यहाँ से यहाँ पहुँचना है, or from there to another place. कलाम कहता है आल में बाला की चीजों की तलाश में रहो। The word of God says, seek the kingdom of the Lord. पहले आलमे बाला को ढूंढ लो। First seek the kingdom of तो ये God, सारी चीजें तुमको मिलेंगी। and then everything shall be added to you. अभी तो उसने कहा है जमीन पे कई गुना से ज्यादा वो देगा। And the word of God says, yes, He will bless, multiply us more. मेरा मैसेज तो अभी खत्म नहीं हुआ, कुछ लोगों की बाइबल्स बंद हो रही हैं। मैसेज अभी चल रहा है स्टिल। बाइबल्स बंद मत करें, मैं देख रही हूँ। बाइबल्स को खुला रखें। 5 बजे से पहले बंद नहीं करूंगी, 5 बजे तक टाइम है मेरा। कहता है अगर तेरे पास खाने और पहनने को है तो इसी पे कनात कर ले। So the word of God says, be content with what you have. कहता है जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो अपने आप को और बातों में फंसा लेते हैं, बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली बातों में। The word of God says, those who want to be rich, they entangle themselves with the things of the world, the things that are meaningless. लिखा है 9 वर्स देखिए, क्योंकि जो दौलतमंद होना चाहते हैं। It says, but those who desire to be rich fall into temptations and a snare. साक्षी इसकी 9वीं आयत पढ़ना, जरा जोर से पढ़ना। दूसरा तिमोथियस, पहला तिमोथियस उसका 6 बाब, उसकी 9वीं आयत को जोर से पढ़ना। नौवां 6 बाब दी 9वीं आयत। धनवान होना चाहते हैं वे प्रलोभन फंदे में और अनेक मूर्खतापूर्ण और हानिकारक लालसा में पड़ जाते हैं। बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंस जाते हैं। दौलतमंद होने के लिए हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में भी फंस जाते हैं। कभी कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिश, ऐसी ख्वाहिशात के अंदर गिरफ्तार हो जाते हैं। Well, sometimes we just entangle ourselves with the foolishness and the lusts of the things. हाँ जी, आगे बेटा। जो मनुष्य को पतन तथा विनाश के गर्त में गिरा देती है। हाँ, वो तो दरिया में गर्क कर देती है, हलाकत के दरिया के। हमारी ख्वाहिशात हमें हलाकत के दरिया के अंदर गर्क कर देती हैं। And it says, but those who desire to be rich fall into temptation and a snare, and into many foolish and harmful lusts, which drown men in destruction and perdition. और 10वीं आयत में लिखा है
In verse 10 it says, रीटा 10वीं आयत की लिखे है, हाँ जोर से, पता नहीं चल रहा। ओके, क्रिस्टियन 10वीं आयत में क्या लिखा है? तिमोथियस है, तिमोथियस, पहला तिमोथियस है, पहला तिमोथियस उसका 6वां बाब पढ़ रहे हैं। क्योंकि जर की दोस्ती, जर से दोस्ती लगानी बंद करनी है हमने, क्योंकि वो बुराई की जड़ है, रूट है, रूट। For it is written, for the love of money is a root of all kinds of evil. कहता हर किस्म की बुराइयां। It says all kinds of evil. याद रखिएगा, जो जर से दोस्ती करेगा वो बहुत सारी बुराइयों के अंदर गिरफ्तार हो जाएगा। So please remember, if your love is for the money, you will be ensnared. हाँ, वो उसकी रूट है, यहां से सब कुछ निकलेगा। जैसे ये है, फिर इसकी ब्रांचेस, ये है जर से दोस्ती, यहां से बुराइयां निकलनी शुरू हो जाएंगी। हरामकारी आएगी, नशा आएगा, ड्रामेबाजी आएगी, आपके अंदर गरूर आएगा, आपके अंदर घुमंड। सबसे पहले तो घुमंड आता है। जेब में 1000 पाउंड है, घुमंड दिमाग इधर आता है, आ जाता है। बैंक खाली होते हैं, निकल के चलते रहे, बैंक थोड़ा परे होते हैं, चल दे रहे। जेब में नहीं होते ना, जब जेब में नहीं होते परेशान हाल, खुदा भी याद आ जाता है। हाँ, खुदा भी याद है, जब प्लीज ये बिल फंसे है, प्लीज खुदा, प्लीज बिल फंस गया है, मॉर्गेज फंस गई है, खुदा प्लीज, खुदा याद आ जाता है। जेब में पैसा है, कौन है? खुदा। यार सारे मसले तो हल हो गए, नोट आ गए जेब में, है ना, चल मेरा बेटा कर दे, सबका इकट्ठा कर दे। The Bible says that the money is root of all kinds of evils. Could be anything. It says all kinds of evil. When we have money in our bank accounts, we walk with our heads straight up, and when there is no money, our heads are down. So with money comes pride. और कलाम में लिखा है कि गिरने से पहले गरूर आता है। याद रखिएगा, गिरने से पहले गरूर आता है। गरूर किससे आ गया? जर की दोस्ती सबसे पहले गरूर लेके आती है। So your friendship or your love for money brings pride in your life. And what does the Bible talks about falling down? The Bible says before falling down, pride enters life. कहता है जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया। And look at this, what it says. It says, for which some have strayed from the faith in their greediness and pierced themselves through with many sorrows. यहूदा इस्करियोती ने जर के साथ दोस्ती कर ली थी। And Judas Iscariot loved money. उसको जर से प्यार हो गया था। He loved money. उसने क्या किया? पैसों में बेच दिया। What did he do? He sold Jesus for the money. इसी तरह कितने ही हैं जो खुदा को बेच रहे हैं, स्टिल बेच रहे हैं। Look at this. Even today in 21st century, people are still selling God for money. खुदा को बेचा जा रहा है। People are selling God. उस वक्त उसने 30 सिक्कों में बेचा था, आज हजारों मिलियंस पाउंड और डॉलर्स में बेच रहे हैं। Judas Iscariot sold Jesus for 30 shekels, but people are selling God for millions and millions of pounds and dollars. इसीलिए कह रहा है कि बाज ने ईमान से गुमराह, जब इंसान ईमान से गुमराह होता है तो यीशु को बेचना शुरू करता है। And what it says is some people who have strayed from faith. So when you stray away from faith, you start selling Jesus. वेरी सिंपल, अगर हम अपनी जॉब पे जाते हैं, हम यीशु का टाइम जब हम किसी को देते हैं, इसका मतलब हमने यीशु को 30 पाउंड में 10 पाउंड का घंटा है ना, 10 पाउंड में यीशु को बेचा। So if you are working at the time you have to give to God, or time you have separated for God, and you start working or taking up shifts even for 10, 20, 30, 50 pounds, you are selling God. इसीलिए कलाम में लिखा है, ऐ मर्दे खुदा इन बातों से भाग। So that is why the Bible, the Word of God says, man, you have to get away from, run away from these things. भाग चलने के लिए नहीं कह रहा, स्लोली दूर होने के लिए नहीं कहता, भाग के दूर हो। The Word of God says you have to quickly run away from these things. कहता रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र, हिल्म का तालिब हो। It says, but O man of God, flee these things and pursue righteousness, godliness, faith, love, patience, gentleness. ये सारी चीजें कब आएंगी? When will you get these things? जब खुदा का रूह अंदर आ जाएगा। When the Spirit of God enters your life. क्योंकि ये सारी की सारी रास्तबाजी के फल की बातें हो रही हैं। So they're talking about the fruits of righteousness here. फिर कहता है, फिर तू हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले, जिसके लिए तू बुलाया गया। हम इसलिए नहीं बुलाए गए कि हम जमीनी चीजों के पीछे भागे। So we are not called here in this world, on this earth, to gather the things of the world, but
we're called here to get the things that are eternal, the kingdom of आप God. हमेशा की जिंदगी के लिए बुलाए गए हैं। So we are called to have eternal life. किस किस को इस बात का यकीन है कि हम हमेशा की जिंदगी के लिए बुलाए गए हैं? So how many of you believe that we're called for eternal life? लेकिन हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। But to enter eternal life, we have to do something. उन्होंने भी हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। And these people who followed Jesus, the disciples of Christ, they left things for Jesus. क्योंकि आप इसीलिए बुलाए गए हैं। And for this reason you are called. इसकी 17वीं आयत देखेंगे। Same chapter, verse 17. रीटा 17 आयत पढ़ी, जोर दी। पहला पहला तिमोथियस की 6 बाब की 17 आयत। अब दौलतमंद होने हैं, आप दौलतमंद होना चाहते हैं? कितने हैं जो दौलतमंद होना चाहते हैं? कम ऑन, डरो मत, डरो मत, डरो मत, डरो मत। मैं दौलतमंद होने का तरीका बताने लगी है। कम ऑन। हाँ, दौलतमंद होना चाहते हैं, मैं भी होना चाहती हूँ, Come आप on, सब होना आप क्या चाहते करें? हैं। लेकिन मैं उस दौलत की बात नहीं कर रही जिसको कीड़ा जंग लगाएगा। मैं उस दौलत की बात करने लगी जो खुदावंद चाहता है कि हम लोग दौलतमंद हो। खुदावंद आपको दौलतमंद देखना चाहता है। खुदावंद आपको दौलतमंद करना चाहता है। खुदावंद आपको बढ़ाना चाहता है। खुदावंद आपको प्रॉस्पर करना चाहता है। लेकिन किस चीज में? उन सब में नहीं जिसमें हमने अभी देखा। हाँ जी, सॉरी। God wants to prosper you, bless you, make you rich, but in which things? Not the things that we have just read about, but the other things. पढ़ेंगे 17 आयत में। हाँ जी मेरा बेटा, So जोर verse से पढ़ना। 17. पहला 6वां बाब बेटा, पहला तिमोथियस 6 बाब। 6वां बाब। मैं भी वही बच्चा पढ़ रही हूँ जरा मैंने पता है बाइबल खा ले थोड़ी अगे पीछे हो रही है। ध्यान ना अपनी अपनी बाइबल खुल गया रखो, मैं फिर पढ़ लेना किसी को। सॉरी बेटा, गलत पढ़ रहा है। पहला तिमोथियस, 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 पहला तिमोथियस 6 बाब। हाँ पढ़। पढ़। हाँ ठीक है। गलत पढ़ रहा है। हाँ ये घर हो, उसको पता नहीं चल रहा। हाँ जी, थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू। साक्षी बेटा पढ़ना, तूने निकाला तो। जो इस वर्तमान संसार में धनवान है, उन्हें आदेश दे कि वे अहंकारी ना बने, मगरूर ना होए। अगर जमीनी दौलत आपके पास है तो मगरूर नहीं होना। अगर है तो मगरूर नहीं होना। मगरूर हो जाएंगे तो गिर जाएंगे, खत्म हो जाएगी। हाँ जी। और अनिश्चित धन पर नहीं, परंतु परमेश्वर पर आशा रखें। खुदा पर उम्मीद रखनी है, ना पायदार दौलत पे नहीं। आगे। जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। वो हमारे सुख के लिए बहुतायत से देता है। कोई दिन ऐसा बताएं जिस दिन आप सो के उठे हो तो आपके पास रोटी नहीं दिखाने के लिए है। So the verse 17 it says, command those who are rich in this present age not to be haughty, nor to trust in uncertain riches, but in the living God, who gives us richly all things to enjoy. और फिर आगे लिखा है, नेकी करें और अच्छे कामों में दौलतमंद हों। And he says, अभी do मैंने बोला कि good मैं and be दौलतमंद होने rich का in the तरीका बताती things. हूँ। किसमें दौलतमंद होना है? So in which thing we have to be rich? Come on, in बोलो। doing good things. किस चीज में होना है? नेकी करने में In doing good things. और अच्छे कामों में। किसमें? In good things and the works. अच्छे कामों में दौलतमंद होना है। Good किसमें works. होना है? Good works. किसमें दौलतमंद होना है? Good works. की गल अच्छा काम करना नहीं चाहते, बोलते लो। कमान बोलो तो सही, करना नहीं है, बोलो तो सही। किसमें दौलतमंद होना है? Good works. अच्छे काम. मैं बगैर माइक के आपसे ज्यादा जोर से बोल सकती हूँ। किसमें दौलतमंद होना है? अच्छे काम. बोलने से नहीं, अच्छे काम करने से। So not just saying good works, we have to do the good works. कहता है और सखावत पर तैयार रहे। And he says we have to be ready to give, willing to share. इमदाद पे मुस्तैद हुए। Yeah, we have to be able to share, willingly मतलब share. बिल्कुल तैयार रहे। Ready to share. अभी बोलें कि सैलाब आ गया है, पैसे देने हैं, मदद के लिए तैयार।
Amen. अभी बोलते हैं कि वहां पे गरीबों के पास रोटी नहीं है, मदद के लिए तैयार। So we should be willing to share your wealth, your money, for the relief of anything or to helping anyone. आप यकीन करें, जब आप मस्कीन को देते हैं, आप खुदा को कर्जदार करते हैं। कलाम कहता है ये। The word of God says, if you help the poor, you make God debtor to you. बहुत सारे लोग होते हैं, कभी कभी मुझे कहते हैं हम देंगे, आप ऐसे करें, मेरे वाले 10 पाउंड डाल देना। वो 10 पाउंड ही नहीं आते मेनू, मैं तो पाई दे दी है, मैं मंगती भी नहीं। मैं कहनी चल मेरे वाले भी 10, ए वाले 10 भी मेरे वाले भी। लेकिन नहीं, मैं आपको वेरी ट्रू बात बता रही हूँ। मतलब देखे देखी चलें, कभी हो जाता है ना। हम लोग अक्सर ही, मैं इस बात के लिए खुदावंद का बहुत शुक्र करती हूँ। So we thank God for this thing. हम लोग बहुत सारे डिफरेंट जगह पे हेल्प करने की कोशिश करते हैं, अगरचे हमारा चर्च बहुत छोटा सा है। Even though we are not great in number, but our church helps people with different places. इंडिया में, पाकिस्तान में और बहुत सारी छोटी छोटी जगहें, अगर हमें कहीं पता चले कि वाकई में कोई नीडी है तो हम वहां पे भेजने की, और हम नहीं भेजते, खुदा हमारे दिल में डालता है तो हम वहां पे कुछ थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। Yes, in India and Pakistan we do help people. तो जब मैं कहती हूँ तो कभी कभी लोग मुझे कह देते हैं, अंश करी 10 पाउंड मेरी तरफ से आप 10 पाउंड डाल देना, ठीक है। So sometimes people do tell her that please put in 10 pounds from my side. मैं वो 10 और 20 ऐड कर देती हूँ, ओके जी चले गए, है ना। And then she puts the money in for helping, but they never receive the money. Never get the money back. मुस्तैद रहे। So willingly have a willing heart to help यकीन others. करें, खुदावंद आपको उस 10 के बदले में 20 देगा। Remember that God will multiply that 10 into आपको 20 शायद and उस will 10 give you. पाउंड से किसी के घर के अंदर राशन चला जाएगा। It could be that from that 10 pounds someone will eat dinner. यकीन करें कि शायद आपकी रोटी बासी आपके बिन में जाती है, बहुत से लोगों के पास रोटी नहीं है। A lot of people, especially in the United Kingdom, a lot of people waste food. But look at this, there are people who don't have nothing to eat. मैं बहुत सारे घरों को जानती हूँ जिनके अंदर खाना बिनों में जाता है इफरात के साथ। Personally, she knows many houses where food wastage is in high numbers. दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत गरीब हैं, उनकी इमदाद के लिए मुस्तैद रहें, वहाँ से पैसा बचाएं, किसी की मदद करें। Please willingly help others with your heart. और यही खुदा हमसे चाहता है। And this is what God wants वो from us. हमें दौलतमंद बनाना चाहता है ऐसे कामों के लिए। He wants us to be rich for the things, for the good works. उसने उस अमीर दौलतमंद से भी कहा था, बेच के तो गरीबों में भेज दे। What did Jesus say to that rich man? Jesus said to him, go sell your wealth, sell whatever you have and give it to the poor. और लिखा है, आइंदा के लिए अपने वास्ते एक अच्छी बुनियाद कायम कर ताकि हकीकी जिंदगी पे कब्जा करें। And it says, for the future, prepare something that is better for you so you have eternal life. और हम सभी कब्जा करना चाहते हैं। And we all want to have eternal मैंने life. सबसे पहले यही पूछा था, कितने लोग हैं जो जाना चाहते हैं? So we asked you the first question, how many of you want to be with him? और सबने कहा था हम बादशाही में जाना चाहते हैं। And you all raised your hands, you said you want to enter the kingdom of God. बादशाही में जाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। To enter the kingdom of God, you have to do something. अपने दरवाजे खोलने पड़ेंगे। You have to open your doors. हाँ, फिर हमको निशान की तरफ दौड़ना पड़ेगा। You have to run towards हाँ, फिर हमको दौलत को छोड़ना पड़ेगा। mark. You have to leave the money. फिर हमको जागने की जरूरत होगी। You have to stay awake. मतलब कितने सारे काम हैं जो हमें There are a करना lot of पड़ेगा। things you have to do. ये लेकिन ये सारे काम ऐसे हैं जो मुमकिन है कि हम कर सकें। And these things are not impossible. These are very possible things. ये वो काम है जो खुदा ने हमें करने के लिए कहा है, जिनमें हम ऐसा काम नहीं, खुदा ने ये नहीं कहा कि मेरे बाद तुम भी पानियों पे चलना। Jesus never told his disciples, after me, go walk on water. उसने नहीं बोला कि भी तुम पानियों पे चलना शुरू करना, लोगों को करतब दिखाना को पानियों पे चल के, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं उसने बोला। No, Jesus never said to his followers, go walk on waters and do this and that. ताकि लोग तुम्हारे इस ड्रामे से लोग जो है वो मेरे पास आ जाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ उसने नहीं बोला। उसने ऐसे काम करने के लिए बोला कि जो इंसान कर सकता है। Jesus said to his disciples, go do the things like these, what we've और just अभी talked कलाम में हमने ये about. देखा कि आप इसीलिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। And the word of God says, for such you have been called. कितनी बड़ी बात है कि आप बुलाए गए हैं इस बात के लिए कि बादशाही में जाएं। So look at this, what a great, wonderful thing it is that we are called to enter the kingdom of God. वो हमें लेके जाना चाहते He हैं। wants us to go with him.
वो हमें अपने साथ रखना चाहता है। He wants us to be with Him. हमें तो छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ना ही है We have to leave the small things ताकि हमेशा की ज़िंदगी पे कब्जा करें। so that we may have eternal life. हम में से कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। We do not know what tomorrow brings. शायद हमारे प्लान्स जो हैं शायद और कुछ सालों तक के लिए हों। It could be our plans are different for next few years. नेक्स्ट ईयर में कुछ लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों ने बस अब ब्रिटिश पासपोर्ट लेना ही लेना है, हमारा मिल जाएगा ब्रिटिश पासपोर्ट। People could be thinking that they will have British passport. They want. हाँ, नेक्स्ट ईयर में कुछ लोग सोचे कि नहीं सबसे पहला काम ये करना टिकट कटानी इंडिया जाना। So some of you could be thinking that they want to go to India next year. कुछ मालूम है आपको आएगा नेक्स्ट ईयर के नहीं? Do you know for certainty that you will face next year? You will be alive? Do you have this guarantee? किसी के पास प्लान है? कोई भी नहीं जानता। We do not know what tomorrow brings. थिंक कीजिएगा Think about this. कि अगर आज कुछ हो जाए, ज़मीन फट जाए, आसमान खुल जाए, यीशु आ जाए, मैं कहाँ होऊंगा? So think about this. What if everything just breaks loose and Jesus comes? Where will you go? मैं कहाँ होऊंगा? Where will you be? मैं कहाँ होंगी? Where will you be? हमेशा की ज़िंदगी में? In eternal life or somewhere else? अपनी आंखों को बंद कीजिए, So close your eyes अपने बारे में खुद ही सोचिए और अपना आप खुद ही खुदा के हवाले कीजिए और उससे कहिए इंडिया पाकिस्तान के प्लान्स नहीं, बादशाही के प्लान्स की तरफ सोचिए। Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.